الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ نصاب الصرف سبق نمبر 7۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اچھی نیت فرما لیجئے اور کتاب پڑھنے کی دعا پڑھ لیجئے۔ آئیے آج کا سبق پڑھتے ہیں۔ آج کا سبق کا نام کیا ہے؟ ابواب کا بیان۔ ابواب یہ باب کی جمع ہے۔ اب دیکھیں کیا ہے اس میں۔ نصاب الصرف میں باب کیسے پہچانے جاتے ہیں؟ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ باب ضربہ سے ہے، باب نصرہ سے ہے، باب افتعال سے ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں اسی باب کو پہچاننے کے طریقے اور باب کو جانیں گے کہ یہ باب بنتا کیسے ہے۔ ابواب باب کی جمع ہے۔ اصطلاح صرف میں مخصوص ثلاثی مجرد کے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ثلاثی مجرد کے ماضی و مضارع، ماضی اور مضارع دونوں کے پہلے سیغوں کو ملا کر اسے باب کا نام دیتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ جیسے نصرہ یہ ماضی ہے، ینصرو یہ مضارع ہے، تو دونوں کا پہلا سیغہ، ٹھیک ہے۔ 14 سیغے ہوتے ہیں، ان میں سے پہلا سیغہ ماضی کے اور مضارع کے بھی پہلے سیغے، یہ دونوں سیغے کا ایک ایک لے کر یہ باب بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی سے باب پہچانا جاتا ہے۔ تو اس کو اہل صرف یعنی علماء صرف جو ہیں اس کو باب کا نام دیتے ہیں۔ اور ثلاثی مجرد کے علاوہ مصادر کے مخصوص اوزان کو باب کہتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ ثلاثی مجرد کے علاوہ جتنے بھی ہیں، ٹھیک ہے، مجرد ثلاثی مجرد نہیں ہوگا، ثلاثی مزید بھی ہو سکتے ہیں، رباعی مجرد، رباعی مزید بھی کے، ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے، ثلاثی مجرد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ثلاثی مجرد کے علاوہ مصادر کے مخصوص اوزان، مصادر یعنی مصدر کی جمع ہے، اس کے مخصوص اوزان ہوں گے، اس کے وزن ہوں گے، اس کو باب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے دیکھیں، ضرب یضرب، ضرب فعل ماضی ہے پہلا سیغہ، یضرب فعل مضارع ہے پہلا سیغہ، یہ دونوں مل کر ایک باب بن گیا، یعنی باب ضرب یضرب، ٹھیک ہے۔ اسی طرح باب فتح یفتح، اسی طرح باب افعال، افعال یہ مصدر ہے لیکن یہ ثلاثی مجرد کا نہیں ہے، اس کے علاوہ بہت سارے۔ اگلا یہ ہے کہ ثلاثی مجرد کے ابواب۔ ثلاثی مجرد کے کل 8 ابواب ہیں، ہے نا، 8 بابوں میں تقسیم کیا گیا، جن کے 2 قسموں میں، ان 8 کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک کا نام ہے مضطرد اور دوسرے کا نام ہے شاذ۔ اب مضطرد کیا ہوتا ہے؟ پہلا وہ ابواب جو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ 5 ابواب ہے جو کثرت سے استعمال ہونے والا ہے، اس کو مضطرد کہتے ہیں، اور یہ 5 ہے ٹوٹل۔ نمبر 1 نصرہ ینصرو یعنی باب نصرہ ینصرو۔ نمبر 2 ضرب یضرب یعنی باب ضرب یضرب۔ نمبر 3 سمع یسمع یعنی باب سمع یسمع۔ نمبر 4 فتح یفتح یعنی باب فتح یفتح۔ اسی طرح 5واں کرومہ یکروم یعنی باب کرومہ یکروم۔ اچھا، دوسرا کیا ہے؟ شاذ۔ شاذ کیا ہے؟ وہ ابواب جو کم استعمال ہوتے ہیں، یہ 3 ابواب میں تقسیم ہوئے ہیں، ٹوٹل تو 8 ہیں، 5 ادھر اور 3 ادھر، 8 ہو گئے۔ نمبر 1 حسیبہ یحسب یعنی باب حسیبہ یحسب۔ دوسرا ہے کادا یکادو، اصل میں کیا تھا؟ کبودا یکودو تھا، ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا باب ہو گیا۔ نمبر 3 فضیلہ یفضلو یعنی فضیلہ یفضلو، ٹھیک ہے۔ یہ 3 باب ہیں جو شاذ ہے۔ شاذ کا مطلب ہوتا ہے نادر، کم استعمال ہونے والا۔ اب تنبیہ میں کچھ بتا رہا ہے ان تینوں باب میں کس طرح کی حیثیت ہے۔ ان میں سے آخری باب یعنی فضیلہ یفضلو تیسرے نمبر ہے نا، آخری باب متروک ہے، چھوڑا ہوا ہے، یعنی علماء صرف اس کا استعمال نہیں کرتے، بہت ہی کم ہی استعمال ہے، بالکل نہ کے برابر۔ اور دوسرا باب نہایت قلیل الاستعمال یعنی کادا یکادو، یہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں اہل صرف کے یہاں، اہل عرب میں۔ حسیبہ یحسب یہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ آخری 2 جو ہیں یہ بہت ہی کم استعمال ہوتے ہیں۔ آگے چلیں، ان ابواب کی علامات یعنی اس کی نشانیاں ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہی باب ہے؟ تو یہ یاد رکھیں، باب پہچاننے کے لیے ہمیں عین کلمہ کو دھیان دینا ہوتا ہے۔ 3 کلمے ہوتے ہیں، فا عین لام، 3 کلمے ہوتے ہیں۔ ان 3 کلموں میں عین کلمے پر اعراب دیکھ کر ہم پہچانیں گے، زبر ہے تو کیسے کیا ہوگا، پیش ہے تو کیا ہوگا، زیر ہے تو کیا ہوگا۔ دیکھیں
नसरा यनसुरु, इसको कैसे पहचानेंगे? माजी मफ्तूहुल ऐन, यानी माजी में ऐन कलमा फ़तहा होगा, ज़बर वाला होगा, ठीक है। और मुज़ारे मज़मूमुल ऐन, यानी मुज़ारे जब बनाएंगे नसरा यनसुरु से तो उसका ऐन कलमे में पेश होगा, मज़मूम होगा, ठीक है। देखिए मिसाल देखें, दखला यदखुलु, दाखिल होना, दखला, देखिए खा ये ऐन कलमा है, यदखुलु, यहाँ यदखुलु में खा जो है ऐन कलमा है तो इसमें ज़म्मा है यानी पेश है। दूसरा बाब है दरब यदरिबु, इसको कैसे पहचानेंगे? कह रहे कि माजी मफ्तूहुल ऐन, यानी माजी जब रहेगा तो ऐन कलमा फ़तहा होगा, ज़बर वाला होगा, ठीक है। और मुज़ारे मकसूरुल ऐन, और जब मुज़ारे बनाएंगे तो उसका ऐन कलमा कसरा वाला यानी ज़ेर वाला होगा। देखें जैसे दौराबा यदरिबु, यही है बाब। इसकी एक मिसाल और दिया है, गसला यगसिलु, गसला ऐन कलमा कौन है? सीन, सीन पर फतहा है यानी ज़बर है। और यगसिलु यानी फ़ेल मुज़ारे में ऐन कलमा सीन है यानी कसरा है, ठीक है। और उसमें कसरा है यानी ज़ेर है, धोना इसका माना होता है। नंबर 3, तीसरा बाब है समिआ यस्माउ, इसको कैसे पहचानेंगे? कह रहे कि माजी मकसूरुल ऐन, यानी माजी ही में ऐन कलमा ज़ेर वाला होगा, कसरा वाला होगा। और मुज़ारे में मुज़ारे मफ्तूहुल ऐन, और जब मुज़ारे बनाएंगे इसका तो ऐन कलमा फ़तहा वाला होगा, ज़बर वाला होगा। जैसे देखें समिआ यस्मउ, फ़हिमा यफ़हमु, ये मिसाल है। फ़हिमा, फ़हिमा, हा जो है ये ऐन कलमा है जो कसरा है इसमें। यफ़हमु मुज़ारे बनाएं तो इसमें ऐन कलमा फ़तहा वाला हुआ है, ठीक है। चौथा क्या है? फ़तह यफ़तहु, ये बाब फ़तह यफ़तहु है। इसका क्या है? माजी और मुज़ारे दोनों मफ्तूहुल ऐन होंगे, यानी माजी में भी ऐन कलमा फ़तहा ज़बर वाला होगा और मुज़ारे बनाने के बाद भी ऐन कलमा फ़तहा यानी ज़बर वाला होगा। जैसे फ़तह यफ़तहु, ठीक है। क़लअ यक़लअु। एक और इजाफी बात बता देते हैं, फ़तह यफ़तहु को पहचानने का एक और तरीका है कि उसके ऐन कलमा और लाम कलमा, ऐन और लाम कलमा या फिर दोनों में से एक अक्सर हरूफ हल्की होता है। हरूफ हल्की कितने हैं? 3 है, हमज़ा हा, ऐन हा, गैन खा। हरूफ हल्की होंगे तो समझ जाएंगे कि फ़तह यफ़तहु। अच्छा, ये अक्सरियत का कायदा है, यानी यकीनी नहीं है कि यही होगा, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि फ़तह यफ़तहु का जो बाब है वो उसका ऐन कलमा या लाम कलमा क्या होता है? हरूफ हल्की होता है, ठीक है। क़लअ यक़लअ, इसका माना क्या होता है? जड़ से उखाड़ना। 5वां नंबर क्या है? करूमा यकरूम, ये बाब है। इसको कैसे पहचानेंगे? माजी और मुज़ारे दोनों मज़मूमुल ऐन होगा, यानी माजी में भी ऐन कलमा ज़म्मा यानी पेश वाला होगा, और जब इसको मुज़ारे बनाएंगे तो ये भी ऐन कलमा इसमें ज़म्मा यानी मज़मून होगा। कैसे? देखिए करूमा, रा ऐन कलमा है, यकरूमु फिर रा क्या है? ऐन ही कलमा है, दोनों में देखें ज़म्मा है। एक और मिसाल देखें, शरूफ़ा यशरूफ़ु, शरीफ होना, शरूफ़ा यशरूफ़ु। इसी तरह कसूरा यकसूरु, है ना। 6ठा बाब क्या है? हसीबा यहसिबु, ये कैसे पहचानेंगे? माजी और मुज़ारे दोनों मकसूरुल ऐन होंगे, यानी माजी में भी कसरा आएगा और मुज़ारे में भी कसरा आएगा। और ये समिया यस्मऊ से मुसाहबत है, लेकिन समिया में मुज़ारे जब बनता है तो ऐन कलमा फ़तहा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐन का माजी हो या मुज़ारे दोनों में कसरा ही रहता है यानी ज़ेर वाला रहता है। जैसे हसीबा यहसिबु। एक और मिसाल, वलिया यलिया, यलियु, ठीक है। वलिया यलियु, यली हो जाएगा, ठीक है, करीब होना, वला यली, इसी से वली बना। नंबर 7, कादा यकादू, असल में क्या था? कबूदा यकवदू था, ठीक है। इसके कैसे पहचानेंगे? माजी मज़मूमुल ऐन और मुज़ारे मफ्तूहुल ऐन, ठीक है। ये सब इस्तेमाल कम होता है, अक्सर ऊपर वाला ही ज़्यादा इस्तेमाल होगा, इसलिए परेशानियाँ कम होगी। माजी मज़मूमुल ऐन, अब यहाँ देखें, माजी में कबूदा वाव में पेश है, ठीक है, और मुज़ारे में मफ्तूहुल ऐन है, यकवदू, वाव कलमा जो है ना वो क्या? वो ऐन कलमा है, तो माजी रहेगा तो ज़म्मा होगा और मुज़ारे बनाएंगे तो फ़तहा होगा। तो ब्रैकेट में जो दिया हुआ कबूदा, वाव देखें मज़मूम है, यकवदू
अब मुजारे बनाने के बाद क्या है, मफ्तूह है। अब ये तालील हुआ है ना, तालील का बाब पढ़ेंगे, बहुत दूर में है उसका सबक। तो तालील होने के बाद ये कादा या कादू हुआ, ठीक है। कायदा क्या होता है तालील में कि वाव मा कबल फ़तहा हो तो अलिफ से बदल दिया जाता है, ठीक है। इसी तरह वाव मा कबल साकिन हो तो वाव के हर के मा कबल को देंगे, उसके बाद वाव के बाद उसको अलिफ से बना दिया, ठीक है। कादा या कादू। अब देखिए 8वां नंबर क्या है, फ़ज़ीला, फ़ज़ीला या फ़दुलू। इसको कैसे पहचानेंगे, मासी मकसूरुल ऐन और मुसारा मजमूल ऐन होगा, फ़ज़ीला या फ़दुलू। चूँकि ये बाब मतरूक है, छोड़ा हुआ है, इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं के बराबर है, ख़त्म ही हो चुका है, ठीक है। इसकी कोई मिसाल नहीं दिया, फ़ज़ीला या फ़दुलू ही काफ़ी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कुछ इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, अच्छी बात है। नसरा यनसुरु, दरबा यदरिबु, समिआ यस्मउ को उम्मुल अबवाब कहते हैं, यानी तमाम अबवाबों की माँ कहते हैं। याद रखें यही 3 अबवाब है जिनको आपको अच्छी तरीके से रटना है। क्या कहते हैं उसको, गर्दान जो है, कबीर और सगीर दोनों, ठीक है। और फतह यफ्तहु, करुमा यकरुमु और हसीबा यहसिबु को फुरूउल अबवाब यानी एक्स्ट्रा बाब कहते हैं इसको, ठीक है। असल क्या है, असल यही तीनों है, नसरा यनसुरु, दरबा यदरिबु, समिआ यस्माउ, उम्मुल अबवाब इसे कहते हैं। और फतह यफ्तहु, करुमा यकरुमु, हसीबा यहसिबु ये फुरूउल अबवाब कहलाते हैं, ठीक है। उम्मीद है सबक समझ में आ गया होगा। मेहनत कीजिए इसमें, और अलामत को पहचानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इबारत में पहचान सकेंगे कि कौन सा बाब से है, और आसानी से लुगत को समझ सकेंगे, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे तालिब इल्म को बताइए। हमारे चैनल का नाम है इल्म ही कामयाबी है।